So in today's class, you will learn the classful addressing. You know IP addresses, as there are two versions of your IP addresses. The oldest version is your IPv4 and the जो आपका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है या फिर in for future use your IPv6 is there. Okay, so but in your PC, if you want to see the IP address, it will show you both IPv4 as well as your IPv6 address plus your MAC address also, and all the details about the connection. Okay, so let us move. We will discuss about the classful addressing. So in your IPv4, you know that is the IPv4 is of 32-bit addresses, and this means that there is 2 to the power 32 address spaces are there. So here these 32 bits are divided into 4 bytes each, and this how you divide it? You just put a dot. Okay, you just put a dot like your 192.168.0.1. okay, so you represent it in that form. And here IPv4, the representation is in decimal notation. So how do you convert this decimal to binary, binary to decimal? You have to learn by your own. Okay, तो आप यहाँ क्या कर रहे हो कि वो जो डॉट पुट कर रहे हो, तो ईच ऑफ 1 बाइट, सो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट. तो आप दिस 8 बिट्स सबको सेपरेट कर रहे हो. टोटल 32 बिट्स है, उसको आप डॉट देके सेपरेट कर रहे हो. So for that reason this is also called as your dotted decimal notation, because you represent in the form of decimal notation and you simply divide each portion by simply putting a dot here. So now come to network address, host address और network number, host number. जैसे आप रास्ता, आपका जो घर रहता है उसका एड्रेस रहता है, सो आपका स्ट्रीट नंबर रहता है, हाउस नंबर रहता है. तो जस्ट कंसीडर इट इन वन स्ट्रीट देयर आर नंबर ऑफ हाउसेस आर देयर. ओके, सो वो जो स्ट्रीट नंबर है दैट इज योर नेटवर्क एड्रेस और नेटवर्क नंबर, एंड दिस होस्ट एड्रेस इज योर होस्ट नंबर. सो इनिशियली आप इसको कैसे डिवाइड करते थे? दैट इज क्लासफुल एड्रेसिंग के द्वारा आप डिवाइड करते थे. बट लेटर ऑन, बिकॉज ऑफ सम फ्लोज, देर आर अदर कॉन्सेप्ट दैट इज यू डिवाइड दिस एड्रेस और इनटू नेटवर्क एड्रेस एंड होस्ट एड्रेस. कैसे आपको डिटरमाइन करना है? दैट इज डन using your subnet masking. Okay, so before going to learn it, a short history about your this classful addressing. So आपका classful addressing आपका शुरू हुआ था 1981 में. So इसके पहले भी आपका जो IP address का जो फॉर्मेट है, so this IP address is divided into two parts, that is your network portion and your host portion. So उस टाइम में आपका क्या किया जाता था ना, here this there, उस टाइम में भी आपका क्या किया जाता है ना कि बिफोर क्लासफुल एड्रेसिंग दिस इज डिवाइडेड इनटू नेटवर्क पोर्शन एंड होस्ट पोर्शन स्प्लिट इनटू. सो 8 बिट आपका नेटवर्क नंबर के लिए था एंड द 24 बिट्स दैट इज होस्ट नंबर के लिए था. द टोटल बिट्स इज 32 बिट्स बिकॉज दिस IPv4 इज योर ओल्डेस्ट वर्जन. ओके, सो यहाँ पे आपका दिस 8 बिट आपका नेटवर्क के लिए है एंड 24 बिट आप क्या के लिए, होस्ट के लिए है. ओके, सो यहाँ पे नेटवर्क नंबर मे बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो सकता है. सो नेटवर्क 10 इज
यूज फॉर योर ARPANET. ओके, सो ईच नेटवर्क के लिए आपका कितना होस्ट चाहिए? होस्ट 24 बिट्स है, सो फॉर ईच नेटवर्क देयर इज 2 to the power 24 बिट्स. सो बहुत सारा हो गया. तो उस टाइम में क्या हो रहा था ना कि इंटरनेट वॉज नॉट so much popular at that time or too much popular at that time, and there are no such organization who are large organizations are there, were there who uses this classful addressing this network number of network address और होस्ट एड्रेस. ओके, सो उस टाइम में इतना उसका चाहिदा नहीं था. बट लेटर ऑन हम लोग का अभी अगर देखना जाए तो नंबर ऑफ होस्ट्स आर देयर, नंबर ऑफ नेटवर्क्स आर देयर. ओके, सो दिस इज योर बिफोर क्लासफुल एड्रेसिंग. So this classful addressing started in 1981, but after that there is some another, because of some flaws, there is some another concept introduced in 1993, that is your classless internet domain routing. Okay, so in come to classful addressing. क्लासफुल एड्रेसिंग में आपका क्या होता था ना, दिस इज द मेथड which divides this address in this IP address is divided into how many parts? 5 classes. Okay, class A, class B, class C, class D and class C. So class A, B, C are used for the unicast address for the network, and class D for multicast, class E for reserve purpose. Okay, so here this, what is the difference between, there are unicast, multicast, and there is some another term is there, that is your broadcast. Unicast में क्या होता है ना, there is one sender, one receiver, point to point. But in multicast there is one sender but independent receiver, and in broadcast there is one or more senders and one or more receivers are there. मतलब कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है इन ब्रॉडकास्ट में, बट मल्टीकास्ट में नहीं होता है. मतलब एक सेंडर है जिसको उसको मतलब देयर आर नंबर ऑफ रिसिपिएंट होंगे, तो वहाँ पे जिसको वो भेजना चाहेगा सिर्फ वही वो रिसीव करेगा, जिसका डेस्टिनेशन एड्रेस होगा वही वो रिसीव करेगा. दैट इज़ वाई इट इज़ इंटेंडेड रिसीवर, खाली वो एक्सेस कर सकते हैं उसका मैसेज. ओके, सो नाउ let us see, this IP addresses are managed by your IANA. आपको क्वेश्चन में गिर सकता है, what is the full form of IANA? So this is your Internet Assigned Numbers Authority and also managed by your RIR, that is your Regional Internet Registries. Okay, but this आपको जो IP address सेंड किया जाता है, that is maybe समवेयर ये आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी उसको प्रोवाइड करते हैं, और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर भी आपको प्रोवाइड करता है. ओके, नाउ कम टू लुक हियर. द इंटरनेट वाज नॉट टू मच पॉपुलर एट दैट टाइम, because of that reason we are introducing your classful addressing. Okay, and the other reason to move towards this classful addressing is that scalability and increasing demand of your IP addresses. Okay, because of that this concept classful addressing is introduced. So scalability मतलब क्या है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को कम नेटवर्क होस्ट चाहिए रहता है, और किसी ऑर्गेनाइजेशन का लार्ज नंबर्स ऑफ होस्ट्स रहते हैं. जैसे आप पढ़ेंगे आपका जो क्लास ए एड्रेसिंग है वहाँ पे दिस इज़ यूज्ड फॉर योर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन. क्लास ए एड्रेसिंग यूज़ करता है, क्लास बी फॉर मीडियम एंड क्लास सी इज़ फॉर स्मॉल, जहाँ पे कि कम नंबर ऑफ होस्ट रहेंगे, और मीडियम में जहाँ पे मीडियम नंबर ऑफ होस्ट रहेंगे, लार्ज
ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे कि बहुत सारे होस्ट रहेंगे. ओके, जैसे आपका एग्जांपल दो IBM. ओके, सो अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड डिमांड आपका क्लास फुल एड्रेसिंग इंट्रोड्यूस हुआ. सो यहाँ पे आपको कैटेगराइज कर दिया है क्लास A, B, C, D, E. Okay, so here address space is divided into two parts, that is your network ID as well as your host ID. Now come to class A addressing. So before going to learn about what is class A addressing and वहाँ पे कैसे आप represent करते हो bits को, you have to know that the number of addresses usable for addressing specific host in each network is always your 2 to the power n minus 2. So here this n represents the sum where your n is the used for the number of rest fields, and this minus 2 is or subtract with 2 to adjust the use of the all bits 0 host portion for the network and all bits 1 host portion as a broadcast address. Okay, so in class A addressing, the address range is between your 0 to 127. Okay, 127, and your starting address is your 0.0.0.0, and the end address is 127.255.255.255, and you have to convert it into the binary. Then it is 8 zeros. This is also dot 8 zeros. You write on your copy. This is also 8 zeros, 8 zeros, 8 zeros dot. Then you convert it into the binary. Then it is 0 1 0 0 0 0 0 0 dot 8 ones 8 ones 8 ones. Okay, so remember one point before learning this class A, B, C, D, E. Then remember this point that in class A the first byte or the first octet, because this is of 8 bits, so this first octet is your network, and these 3 octets are for your host. And in class B these 2 bytes are for your network and the last 2 bytes are for your host. And in class C these 3 bytes are for network and this single last byte is for host. And class D for multicast and class C reserved purpose, और some future experiment अगर चाहिए तो ये class E को वो लोग यूज कर सकते हैं. ओके, सो इन क्लास में A आपका क्या होता है ना, रिमेंबर दिस. यहाँ पे सबसे पहले आपका जो higher order bits in the first octet is 0, always 0 रहेगा. So जब भी आपको कोई पूछेगा कि आपको कोई IP एड्रेस दिया गया हो like 64.0.0.0 मीन्स 64 किसके बीच में आता है, 0 to 127 के बीच में आता है. सो अगर आप उसको बाइनरी नोटेशन में कन्वर्ट करोगे देन इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0. सो आपका जो भी क्लास ए एड्रेस में के अंदर आएगा, सो दैट ऑलवेज उसका स्टार्टिंग बीट क्या होगा, 0. सो दिस फर्स्ट बीट इज फिक्स्ड, ये चेंज नहीं होगा. दिस फर्स्ट बीट इज फिक्स्ड. सो इन द फर्स्ट, सो दिस टोटल आर ऑफ 32 बिट्स एंड इन टोटल 32 बिट्स में क्या है ना, ये एक बिट तो आपका फिक्स्ड हो गया. सो आपको क्लास ए में क्या बोल रहा है, द फर्स्ट ऑक्टेट इज फॉर योर नेटवर्क पर्पस एंड these 3 are for your host purpose. ओके, सो यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है ना, तो रेस्ट यहाँ पे तो
फर्स्ट ऑक्टेट में आपका फर्स्ट बिट 0 हो गया, देन द रेस्ट बिट, हाउ मेनी बिट्स लेफ्ट, 31 बिट्स. सो द पॉसिबल IP address is 2 to the power 31, that much value. Okay, means 2 to the power 31 जो value होगा, that much IP address will be possible. So here we will see. So हम लोग बोले हैं कि नेटवर्क आईडी रहता है एंड द होस्ट आईडी रहता है. सो लेट अस सी नेटवर्क आईडी कितना होगा. तो नेटवर्क आईडी द फर्स्ट ऑक्टेट, यहाँ तो फर्स्ट ऑक्टेट इज योर नेटवर्क आईडी, बट द फर्स्ट बिट इज 0 फिक्स्ड है, रेस्ट 7 बिट रह गया. सो दीज 7 बिट्स में भी आपका 0000 से स्टार्ट होके आपका 111111 7 1s 7 zeros हो सकता है, बट टोटल 8 बिट्स होना चाहिए. सो इसका फर्स्ट बिट कितना है 0, दिस इज 0, दिस इज 0. ओके, सो हम लोग का रेस्ट कितना बचा है, ये तो चला गया फिक्स्ड में, रेस्ट कितना बचा है 7. सो 2 to the power 7, 2 to the power 7 इज इक्वल टू कितना होता है आपका 128. ओके 128, बट यू सी हियर 0 इज नॉट यूज्ड. The first thing here, this address and this address is not given to any organization. Okay, this address and this address is not given to any organization. This is used for your loopback or some diagnostic function के लिए, आपका पर्पस के लिए आपका यूज होता है, बट ये दोनों किसी को नहीं दिया जाता है. सो हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे देन द टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क इन क्लास ए कितना होगा 2 to the power 7, that is 128. so 128 minus 2. सो हम लोग वहाँ पे देखे थे all bits 0 host portion for network, all bits 1 host portion for your broadcast. Okay, so that same thing is apply here. I will give you some more examples so that you will better understand it. So here what happens, 2 to the power 7 minus 2 is equal to 126. So this 126 addresses are used for your network ID. So 126 एड्रेसेस हो गया. सो ईच नेटवर्क के लिए कितना होस्ट रहेंगे यहाँ पे आपका 24 बिट्स, ये होस्ट के लिए है. सो दैट इज होना चाहिए कितना 2 to the power 24. सो ईच होस्ट के लिए 2 to the power 24. लेकिन यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सो ये हम लोग को नेटवर्क आईडी मिल गया. Now come to number of hosts possible in every network, that is 2 to the power 24 होना चाहिए, बट एक्चुअली ये क्या होता है ना 2 to the power 24 minus 2. वो क्यों होता है, we know the range of class A, जैसे range of class A is 0 to 127 and know it from network bit. जैसे आपका अगर मैं एक एग्जाम्पल दूँ, गूगल का आपका आईडी एड्रेस लेट योर 64.0.0.0. सो नंबर ऑफ यूजर्स आर देयर हु यूजेस, मीन्स इन www में वर्ल्ड वाइड वेब में आपका क्या हो रहा है कि वो सारे आपका गूगल को एक्सेस कर रहे हैं. सो गूगल में आपका नंबर ऑफ होस्ट्स है. सो आपका जो गूगल एक नेटवर्क है वहाँ पे नंबर ऑफ होस्ट्स हैं. सो उस नेटवर्क का एड्रेस आपका कितना है, आईपी एड्रेस 64.0.0.0. सो पॉसिबल कितना हो सकता है, पॉसिबल कितना होस्ट हो सकते हैं यहाँ पे इसके अंदर. सो 0 से लेके 64 डॉट पूरा 1 तक, ये सारा 1111 हो जाएगा, मीन्स 255.255.255 तक पॉसिबल हो सकते हैं. सो हियर 2 to the power 24 होस्ट एक्चुअली पॉसिबल हो सकते हैं, बट फर्स्ट आईपी एड्रेस होल नेटवर्क इस तो ऑल्सो यूज हो गया है. ये जो 64.0.0.0
ये होल नेटवर्क के लिए यूज हो गया है। सो ये किसी को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। सो आपका 2 to the power 24 था। नाउ कितना हुआ आपका, एक माइनस हो गया, एक माइनस हो गया। नाउ कम टू दिस। सो यहाँ पे आपका लास्ट कितना है 64.255.255.255। दिस एड्रेस इज यूज्ड फॉर ब्रॉडकास्ट। मतलब आप कोई बाहर से कोई सेंडर, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है फ्रॉम द आउटसाइडर कोई सेंडर है जो आपको गूगल का मतलब बहुत सारे होस्ट है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपका कोई मतलब मैसेज सेंड कर रहा है उस आईपी एड्रेस में। तो फॉर दैट पर्पस कि गूगल के सारे होस्ट लोगों को वो मैसेज डिस्प्ले हो जाए, फॉर दैट रीजन फॉर ब्रॉडकास्ट पर्पस। ब्रॉडकास्ट में हम लोग क्या बोले हैं कि देर इज नो इंटेंडेड रिसीवर, देर आर मल्टीपल रिसीवर्स आर देयर। ओके, इन अ नेटवर्क देर आर नंबर ऑफ होस्ट। अगर आप एक मैसेज बाहर से अगर ब्रॉडकास्ट एड्रेस है तो कोई सेंडर सेंड किया तो आप उस नेटवर्क के अंदर जो कोई भी हो आप उसको देख सकते हो एज ए होस्ट। ओके, सो फ्रॉम आउटसाइड टू द नेटवर्क मीन्स रिसीवर, तो ये सारे देख सकते हैं। दैट इज वाई इट इज ब्रॉडकास्ट पर्पस के लिए रखा गया है। दैट इज वाई हम लोग -2 यहाँ पे करते हैं। Now, how to know in which network the IP address belongs to? So, और एक easiest way है default mask. Okay, default mask. So, default mask of class A address is your 255.0.0.0 है। So, how do it help? वो कैसे हेल्प करता है? जैसे आपका हम लोग बोले गूगल, सपोज कोई एग्जाम्पल दिया हुआ 64.0.0.0.2, तो यहाँ पे आपको अभी हम लोग देख दिए हैं इसके गूगल के अंदर है वाह, दिस इज द होल नेटवर्क, इसके अंदर कोई एक होस्ट है हुआ। लेकिन हम लोग कैसे जानेंगे कि उस नेटवर्क के अंदर है? तो उसको करने के लिए आपको एंड ऑपरेशन करना पड़ता है। एंड ऑपरेशन में क्या करना होता है ना, 010 होता है, 100 होता है, 111 होता है एंड योर 000 ही होता है। ओके, सो यहाँ पे आपको दीज बिट्स को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे 8 zeros होगा, यहाँ पे भी 8 zeros होगा, यू हैव टू राइट इट। ओके, और ये 255 का बाइनरी नोटेशन, दिस 8 ones। सो ये दोनों को एंड ऑपरेशन करने से आपको जो भी वैल्यू मिलेगा, सो आपको वैल्यू कितना मिला 64.0.0.0। सो दिस आप इससे जान सकते हो दैट इज कम्स अंडर दिस नेटवर्क एंड दिस नेटवर्क मीन्स विच नेटवर्क, क्लास ए एड्रेसिंग स्कीम के अंदर है, क्लास ए एड्रेस के अंदर है। ओके, नाउ कम टू क्लास बी। सो हियर क्लास बी में आपका एड्रेस रेंज आता है आपका 128। आपका लास्ट कितना हुआ था क्लास ए में 127। हियर यू सी 0 to 127। सो द स्टार्टिंग रेंज कहाँ से स्टार्ट होगा 128 to 191, द टोटल ऑफ 64। सो स्टार्टिंग एड्रेस आपका होगा 128.0.0.0 एंड एड्रेस आपका 191.255.255.255। ओके, सो क्लास बी में आप देखे थे कि 2 bytes आर यूज्ड फॉर योर नेटवर्क पोर्शन एंड 2 bytes आर यूज्ड फॉर योर होस्ट पोर्शन। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है ना, देखो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट हायर ऑर्डर बिट इन द फर्स्ट ऑक्टेट, यहाँ पे ये जो फर्स्ट 2 बीट है आपको 10 रहेगा। दैट इज 1 पॉइंट कि आपको याद रखना है कि उसका फर्स्ट 2 बिट्स
10 होना चाहिए। उसके बाद आप 000, 01, 00 और 1111 पुट करो, जो भी पुट करो, लेकिन फर्स्ट तो इसको आप प्रीफिक्स भी बोलोगे। दिस विल बी योर 10। ओके, सो दिस 10 एंड दिस 2 आर फॉर नेटवर्क। सो रेस्ट कितना बचा? ये 2 बिट्स तो आपको फिक्स हो गया। सो यहाँ पे आपका कितना बचा? और 8 बिट्स, कितना बिट बचा आपका? 8 बिट्स टोटल एंड 2 बिट चला गया, तो 6 बिट यहाँ पे बचा। यहाँ पे आपका कितना बिट है? 8। सो 8 प्लस योर 6 bits, 8 plus your 6 bit, 14 bits. So this 14 bits is used for your network, and this 8 plus 8, these 2 bytes are used for your host purpose. So यहाँ पे आपका हो सकता है this is the fix, this 10, then इसके बाद आपका हो सकता है 000 से 1111. So यहाँ से आप अगर दिस वैल्यू को आप अगर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो यू कैन फाइंड इट दैट इसका डेसिमल वैल्यू 128 है एंड इसका 191 है। ओके, नाउ यहाँ पे देखो। सो यहाँ पे तो हो गया, बट यहाँ पे आपका कितना? 8 बिट्स है। यहाँ पे तो कुछ ऐसे नहीं है, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा? 000080 से 81 तक स्टार्ट होगा। सो टोटल यहाँ पे देखो, यहाँ कितना हुआ? 0 से लेके 255 तक, तो आपका टोटल कितना हुआ? ये 256। ओके, सो यहाँ नंबर ऑफ आईपी एड्रेस पॉसिबल इज टोटल 32 बिट्स। 32 बिट्स है ये टोटल पूरा आईपी एड्रेस आपका कितना है? 32 बिट्स, बट 2 बिट्स आर फिक्स्ड, दैट इज 10 फिक्स्ड है। सो द रेस्ट कितना बचा आपका? 30 बिट्स। सो 2 to the power 30 for your IP address in class B, and in class B first 2 bytes or octet for your network and next 2 bytes octet for your host IP. and यहाँ पे देखिए कि आप number of networks 14, same thing 16 हुआ, but 2 to the power 14 is equal to 16384, बट हम लोग देख रहे हैं अरे यहाँ तो 128 से 191 है। पॉसिबल कैसे हो रहा है? पॉसिबल ऐसे हो रहा है कि आपका यहाँ पे तो आप देख दिए, दिस इज टोटल ऑफ कितना हुआ? 128 से 191, दैट इज 64। सो यहाँ पे आपका कितना हुआ है? 256। अगर 264 इंटू 256 किया जाए, मतलब अगर मैं एक एक को अगर काउंट करूँ, 128 इंटू 256, 191 इंटू 256, rather than that if I do 64 into 256, then it will give you that same result. Okay, this 16384. So number of hosts in each network, this is number of networks. नेटवर्क कितना है? नेटवर्क आईडी कितना पॉसिबल है? सो दिस इज 2 to the power 14, 16384. बट नाउ नंबर ऑफ होस्ट इन ईच नेटवर्क में आपका कितना होस्ट पॉसिबल है? 2 to the power 16. दिस 2 bytes, दिस इज 2 to the power 16. बट as I mentioned in the class A addressing that आपका फर्स्ट एंड लास्ट बिट आपका यूज नहीं होता है। ओके, दैट इज नॉट यूज बिकॉज फर्स्ट अगर होगा तो दैट इज फॉर सम ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स एक नेटवर्क के लिए है। सो वो बिट के बाद में जो बिट स्टार्ट होता है दैट इज फॉर द होस्ट के लिए दिया जाता है, एंड द लास्ट फॉर योर ब्रॉडकास्ट। ओके, so the first IP address network, second IP address for your broadcast. So first IP address is for a network and the second IP address for your broadcast purpose. Now class C में भी आपका क्या हो रहा है? एड्रेस रेंज 192 से आपका 223 तक हो रहा है। स्टार्टिंग एड्रेस आपका वहाँ पे ख़त्म हुआ था कितना? 191 से, तो यहाँ पे स्टार्ट कितना में हो रहा है आपका? 192 223। स्टार्टिंग एड्रेस
192.0.0.0 and address is 223.255.255.255 and all total are of your 32 bits. 32 bits को आपको डिवाइड किया गया है, so each of 8 bits with dot and इसका जो फर्स्ट 3 बिट्स होगा 110 होगा. सो आपका जानने के लिए दिस हेल्प्स यू दैट विच, आपको अगर कोई आईपी एड्रेस दिया जा रहा है तो विच नेटवर्क इट बिलोंग्स टू. ओके, विच नेटवर्क इट बिलोंग्स टू, लाइक 194 कुछ है तो आप कौन से नेटवर्क में बिलोंग करते हो. ओके, सो यहाँ पे 19 इसको अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट कर दोगे तो दिस इज, इसके बाद कितना होगा, ये 0 0 0 0 0 5 0 से 5 1 तक होगा. लेकिन इसको मत छोड़िएगा 1 1 0 को. सो इसको भी कैलकुलेट करेगा. अगर आप दिस बाइनरी को आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे दैट गिव्स यू द रिजल्ट ऑफ 192 एंड दिस विल गिव यू द रिजल्ट ऑफ 223. ओके, नाउ हियर 3 बाइट्स आर फॉर योर नेटवर्क पर्पस. सो ये सारा 0 0 0 से 1 1 1 तक हो जाएगा, ये भी आपका 0 0 से 1 1 1 तक हो जाएगा. ओके, सो यहाँ पे आपका टोटल कितना होगा, दिस 32 इंटू 256, टोटल ऑफ 256 एंड 256 विच गिव्स यू द रिजल्ट ऑफ 2 to the power 21. मतलब क्या, ये जो रेस्ट ये 3 बिट को आप छोड़ दीजिएगा तो नेटवर्क बिट कितना रहा, ये तो पूरा नेटवर्क के लिए है, बट नेटवर्क आईडी कितना होगा, दिस 8 प्लस योर 5, 8 8 16 प्लस योर 5, that is your 21. So 2 to the power 21 which is nearly equal to your 20 lakhs. Okay, now the IP address is total 32 bits, 3 bits fixed. So total IP address आपका कितना होगा, पॉसिबल IP एड्रेस आपका कितना होगा 29. Okay, so 29 IP addresses will be possible. So number of networks कितना होगा 21 bits, that is 2 to the power 21 means 20 lakhs IP addresses will be there. And in number of host in each network आपका आएगा, ये कितना लास्ट में कितना बचा है आपका 8 बिट्स बचा है. ये 8 बिट्स में 2 to the power 8 is equal to your 256 and as I mentioned that the first is your for network and the last is your for broadcast. Because of that this is 256 minus 2 that is equal to your 254, that is possible host. Means this is आपका host हो सकता है 256 but the possible host जो used होता है for used होता है that is 254. Okay, 254. And same here in class D multicast के लिए यूज होता है that is range from 224 to 239. इसमें भी आपको एक easy way दिया हुआ है कि the starting bits are 1110. So these 4 bits are fixed and you have to, इसके बाद आप जो भी लिख सकते हो 000 से 0100 से लेके आपका 4 ones. So if you convert this whole total number into decimal that will give you 224 and this will give you your 239. Okay, so these 8 bits, this 8 bits, this 8 bits. और यहाँ पे क्या हो रहा है ना, this is not given, this is for multicast, this is not given to यहाँ पे आप नेटवर्क आईडी या फिर होस्ट आईडी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो. ओके, लेकिन देखो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस कितना हो रहा है, रेस्ट आपका कितना बचा है यहाँ पे 32 बिट्स से आपका 4 बिट्स चला गया. सो 24 प्लस 4 28 bits means 2 to the power 28 means 25 crore IP addresses are there. But यहाँ पे बोल रहा है it's not given to any network, it's not given to any host. Then इतना सारा जो 25 that is
वेस्टफुल ही है, वेस्ट ऑफ आईपी एड्रेसेस। एंड डिमांड जब तक इंक्रीज ना हो वो यूज़ ही नहीं हो रहा है, सो दैट इज़ वन डिसएडवांटेज हियर। सो नंबर ऑफ नेटवर्क्स, नो नेटवर्क एंड होस्ट, दिस इज़ फॉर मल्टीकास्टिंग एंड सम ग्रुपिंग और ब्रॉडकास्ट के लिए यूज़ होता है। ओके, देन योर क्लास ई दैट इज़ फॉर रिजर्व पर्पस, सम मिलिट्री पर्पस के लिए आपका यूज़ होता है, विच इज़ रेंज अप टू 240 to 255 एंड द स्टार्टिंग 4 bits आर 4 ones and you here also you cannot count the number of networks and number of hosts because it is for reserve purpose, and the disadvantage is also the same, that is your number of IP addresses आपका हो रहा है कितना 28, that is your 2 to the power 28, that is up to 25 crore addresses. so इतना सारा तो है नहीं, मतलब अभी तक कनेक्शन, और वो क्यों ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ये जो हो रहा है एक वेस्टफुल। सो आपका एक्चुअली दिस क्लासफुल एड्रेसिंग स्कीम इज the waste of the IP addresses. Because of that reason we will move forward to your classless internet domain routing. Okay, we will see in the next class classless internet domain routing.